Assalamu alaikum to all of you. Let's start the lecture. This lecture is dedicated to the numerical problem of the chapter 21, which is related to the Coulomb's law. So, first of all, we will discuss example problems. So, the first example problem is very easy, so you have to do on your own. I will state the second example, which is related to the equilibrium of two forces. So, in this example, it states that you have two particles, a positive particle and a negative particle, and you have placed these two particles q1 and q2, and they are separated by a distance l. The magnitude of these charges is given. The magnitude of charge 1 is 8q, and the magnitude of charge 2 is given as negative 2q. So it asks you that at what point other than infinity can a proton be placed so that it is in equilibrium, so the net force on it is zero. So suppose you have another charge which is q3, and which is a proton, it means a positive charge. So the q3 is equal to positive q. Okay, so where you should have to place this charge inside this axis. So there are actually three cases. The first one case, if you let's consider these cases. Case one, the charge and the positive charge. Okay, then negative, and this is a positive. Okay, let's place this charge q3 between these two charges. तो आगे चलने से पहले लेट्स फिगर आउट व्हाट वुड बी दिस एफ बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी. तो अगर मैंने इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी हो, तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द चार्ज q1, this is the charge q2, and this is the charge q3. So the force on charge q3, which is a positive charge, is along positive x-axis. So this would be the force on 3, 1. So what would be the force that this charge q2 exerts on the charge q3? So this is the negative, this is the positive. So it means that this charge is going to attract towards this charge. So this would be the force, which is known as F32. So by looking at the free body diagram, you can see that you cannot attain the equilibrium state. So what is the equilibrium state? Equilibrium state that the net force acting on the system must be equal to 0. So it means that there are two forces acting on it. The force on 1 plus the force on 2 gives you 0. So it means that the force 1 is equal to negative of 4, 3, 2. So the forces must have to be opposite to each other. तो यहाँ पे अगर हम देख लें फ्री बॉडी डायग्राम, उस केस के अंदर हमारे पास दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑफ सेम है. तो एक्चुअली वी कैन नॉट प्लेस द प्रोटॉन between these two particles. So let's consider another case. We have the same charges q1, q2, this is the negative and this is the positive. So let's place the proton before this q1 charge. So this is the q3 and this is the positive. So this is the distance between the L, and you can just define this distance from the original x. So let's draw a free body diagram. So what would be a free body diagram? Is the positive, is the positive. So the force on 3 due to 1 towards the negative x-axis. So what will be the force on 3 like a q2 charge? That is again they are negative positive. So there is a force of attraction between these two particles. So it means the force on 3 due to 2 is going towards positive x-axis. So it means that this condition, which is a condition from the equilibrium state,
satisfies that both forces have to be in opposite direction, but that not hold the case. डायरेक्शन के साथ साथ उसको ये भी देखना है कि जो उनकी डायरेक्शंस है, जो उनके मैग्नीट्यूड वो भी सेम होने चाहिए। वो कैसे? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड मेजर करूँ, फोर्स 3 1 का निकालूँ मैग्नीट्यूड, किसके बराबर आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 ओवर R स्क्वायर। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? Q3 की वैल्यू पॉजिटिव Q एंड Q1 इज अ magnitude of Q1 is 8Q. So this is a 8Q, and the distance between these two particles is x square. Okay, let's compute the force on 3 due to 2, which is which comes out with the same 1/4 pi epsilon naught Q3, and Q3 is again Q. And what is Q2? The value of Q2 is negative 2Q. So the negative 2Q is over the distance between charge 3 and charge 2. So the distance between these two particles is x plus L. So the distance is x plus L square. You can see from this, these two expressions that F3 has a magnitude greater. तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से फोर्स क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जबकि जो डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स वो भी बहुत थोड़ा है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से भी फोर्स मजीद एम्पलीफाई हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर हम देखते हैं इस फोर्स को, जो फोर्स लग रही है 3 के ऊपर D2 चार्ज, सेकेंड चार्ज, उसमें जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम है। तो नेगेटिव में है, तो जो इसका जो है चार्जेस का जो मल्टीप्लिकेशन है, उससे जो फोर्स क्या हो रही है वो कम हो जाएगी। और जो डिस्टेंस है वो अगेन बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है चार्ज 1 के लिहाज से। इसका मतलब जो ये वाली फोर्स भी होगी ये मज़ीद कम हो जाएगी। आल्दो कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, मगर जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, जो ये कंडीशन में इनको मैग्नीट्यूड्स भी आते हैं, तो ये कंडीशन मतलब क्या हो जाती है हमारे पास, मतलब ये इसको ये सेटिस्फाई नहीं होगी। आल्दो के डायरेक्शन ऑपोजिट है, मगर जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं वो काफ़ी वेरी कर रहे हैं, तो इस वजह हम केस 2 को भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो थर्ड केस क्या है कि आप उसको प्लेस कर दें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो आप अपने इस चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दें, Q3 को। ओके, तो अब जो केस होगा, अगेन जब मैं इसकी बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो अब अगेन इसके ऊपर फोर्स लग रही है 1 की वजह से, ये सॉरी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये जो F31 है वो टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो F32 अगेन ये जो हमारे पास है, ये जो फोर्स ऑपोजिट है उसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, मगर साथ साथ ये हमारे पास जो इनके मैग्नीट्यूड्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर रहा है। वो किस तरीके से कि देखें कि अगर तो मैं इसका निकालता हूँ मैग्नीट्यूड F31, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास ऊपर सेम था 8Q के ओवर द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास है L, और इसको हमने कहा हुआ है कि X, तो L प्लस एक्स स्क्वेयर। इट मीन्स दैट अब बेशक इनके जो ये फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका चार्जेस का मैग्नीट्यूड वो ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसमें तो फोर्स ऊपर जाएगी, मगर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी तो फोर्स समहाउ बैलेंस में आ जाएगी। तो अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ F32, जो कि होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उनका जो आता है हमारे पास 6Q स्क्वेयर नेगेटिव ओवर दिस एक्स स्क्वेयर। अब आप देख रहे हैं कि अगर तो मैं इसकी बात करूँ, इनके जो मैग्नीट्यूड की बात करूँ चार्जेस के, तो वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, इसका मतलब है फोर्स कम होगी, लेकिन जो इनका डिस्टेंस है वो भी कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स क्या हो जाएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी। तो ये समहाउ यहाँ पर जो है, जो फोर्स 1 ऑन 3 ड्यू टू 1 है, उसमें चार्जेस के मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मगर डिस्टेंस क्या ज़्यादा होने की वजह से फोर्स बैलेंस आउट कर रही है। जहाँ पे मैग्नीट्यूड जो चार्जेस के हैं वो कम है, मगर डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो रही है, एम्पलीफाई हो रही है। लिहाजा ये वो कंडीशन जिसमें हम इस पर रिलाई कर सकते हैं। अब उन्हें पूछा हुआ कि अब x की वैल्यू क्या होगी, बट मतलब x हम कहाँ पर करके रखेंगे, जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो वो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन क्या है, F31 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F32 का
मैग्नीट्यूड, वो यही हमारे पास कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, दिस वन। इसी को हम कॉल करेंगे। वो यहाँ पे डायरेक्शन की बात भी की, हमें पता है वो ऑपोजिट है। हम से बात करें मैग्नीट्यूड्स की, तो अगर मैं इनकी जो वो हैं वैल्यूज इंसर्ट करूँगा, वो मेरे पास आएगा 8q² ओवर x प्लस एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अगर हम बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो दैट सिंपली इज q² ओवर एक्स स्क्वेयर। तो ये चीज़ें गेट कैंसल आउट एंड दिस थिंग गेट कैंसल आउट। तो आपको ये पूरा एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 2l। तो ये वो डिस्टेंस होगा जहाँ पे आप प्रोटॉन को प्लेस करोगे। जब x अगर 2l होगा, मजीद l 2l होगा, यहाँ पे प्लेस करोगे, तो फिर जाके आपको ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अचीव हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम था इससे बिल्कुल एनालिसिस एक हमारे पास प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व करेंगे। उसको प्रॉब्लम है 13। तो 13 मैं नहीं करवाऊंगा बिकॉज मैंने इसको डिटेल से करवा दी है। आप में 13 में भी ऐसे आपको एक प्रॉब्लम दी गई होगी, आपको एक अननोन चार्ज लेके आना होगा और आपको अगेन बताना होगा कि उसको आप कहाँ पे प्लेस करें तो आपको इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाए। तो प्लीज़ डू योर सेल्फ, और अगर कुछ मसला होगा तो हमको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। ओके, सो लेट मी ओपन द बुक। Problem number 3. So we start with the problem number 3. Problem A3 state what must be the distance between the point charge Q1, whose value is given, and the point charge Q2, whose value is also given, for the electrostatic force between them to have a magnitude this. Okay, so it means that you have given the magnitude of force, which is turns out to be 5.07 Newton, and you have given the magnitude of charge 1, which is 26 microcoulomb, and Q2 is equal to negative 47.0 microcoulomb. You have to find out the distance between these particles. You can simply use 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. From here you can find what would be the R. R is equal to the 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over 4 whole magnitude. Just plug in the value and you can find out the distance, which turns out to 1.39 meter. So this is the distance when you place these 2 point particles at this distance. You can find the force as 5.07 Newton. So it is actually very simple problem. Let's move to the second problem, which is the fourth problem. What it states? It states that in the return stroke of a typical lightning bolt, a current of 2.5 10 to the 4 amperes exists for 20 microseconds. How much charge is transferred in this event? Right now, I haven't described what is the electric charge. So प्लीज अभी के लिए आपसे ये देख लें कि एक क्वांटिटी है विच वी कॉल चार्ज, सॉरी द करंट। तो करंट के बारे में आपको मैंने नहीं बताया था, तो अभी के लिए आप में एक ऐसी क्वांटिटी है जस्ट लाइक द चार्ज क्वांटिटी है, वैसी ही क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू गिवन है आपको। ओवर 20 सेकेंड्स तक के लिए फ्लो कर रहा है, तो आपने बताना कि उसमें कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ करंट which turns out 2.5 10 to power negative 4 एम्पियर एंड कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है। दिस इज आल्सो गिवन 20 माइक्रो सेकंड्स। लेट मी कंफर्म 20 माइक्रो सेकंड्स एंड यू हैव टू कंप्यूट द चार्ज कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो देयर इज रिलेशन ऑफ द करंट व्हिच स्टेट्स दैट करंट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय करंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स यू करंट। दिस इज द क्वांटिटी। मगर अगर आपको ये नहीं पता था, अभी यूज कर लें डेफिनेशन ऑफ अ करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज गिव्स यू द करंट। तो इसको हम वैसे एक्सप्लिसिटली आगे जाके स्टडी करेंगे, बट राइट नाउ हम इसको वैसे स्टडी कर लें। तो
अगर हमें चार्ज निकालना हो, सिंपल I क्रॉस T कर लेंगे. You have given the I and T, just plug in the values and you can find out the charge would be 0.50 coulomb. Okay, let's move forward. प्रॉब्लम नंबर 5 है जो कि बड़ी आसान है, तो ये आप खुद करेंगे. लेट मी स्टेट द प्रॉब्लम. A particle of charge this is 20 centimeter distance from a second particle whose value is also given. Calculate the magnitude of the electrostatic force between them. आपको Q1 given है, Q2 given है, आपको R given है. You just have to find out the force. So you can just apply Coulomb's law and find its magnitude. तो ये आप कर सकते हैं. Let's move the second problem. The next problem, sixth problem, which states that two equally charged particles are held 3.2 10 to the power negative 3 meter apart and then released from rest. The initial acceleration of first particle is given and the second particle is given. If the mass of first particle is given, what is the mass of the second particle and what is the magnitude of the charge of each particle? Okay, so let me just state the given data for your convenience. So you have given the mass of the first particle, which is m1, 6.3 10 to power negative 7 kg, and you have given the acceleration of the first particle, which is 7 meter per second square, and the acceleration of the second particle, which turns out to be the 9 meter per second square. Okay, so you have to find the mass of the second particle and the magnitude of each particle, because you have two equally charged particles. Okay, so it means that either you can find Q1 or you can find Q2 that are exactly the same charges. Okay, so how can we find out the mass m2? So it's there are two charged particles, and you then just release the particle, and those particles moving with some acceleration toward each other. So right now, in order to find out, it states that if the particle is at rest, तो उसका मतलब है कि तब भी जो उनका mass होगा, जब particles move करेंगे towards each other, तब भी उनका mass same होगा. तो हम ऐसा करते हैं कि जब वो static position में, जब हमने को hold किया हुआ था, तब हम निकालते हैं कि उनके मतलब masses क्या होंगे. तो हमें पता है कि जो F is equal to ma, हमें पता है कि जो हमारे पास अगर वो हमने रेस्ट पे रखे हुए हैं, तो जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होंगे वो सेम फोर्स लगा रहे होंगे. तो मतलब जो एम ए है 1 का, वो बराबर होगा M2 A2 के. ठीक है, तो दोनों रेस्ट के ऊपर है हमारे पास. ठीक, मतलब रेस्ट से मुराद एग्जैक्टली रेस्ट पे नहीं, बिकॉज अगर बिल्कुल रेस्ट पे होंगे तो उनका जो एक्सेलरेशन होंगे वो जीरो हो जाएंगे. लेकिन हम ये assume कह रहे हैं जो फोर्सेज हैं, जो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि जो फोर्स है हमारे पास, जो 1 लगा रहा है फोर्स, वो बराबर होगी जो सेकंड फोर्स लगा रहा है. ओके, तो इसका मतलब जब हमने कोई इनिशियली रिलीज किया तो वो भी बिल्कुल स्टार्ट किए हैं, तो उस वक्त ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी. तो ये हमारे पास एफ इक्वल टू एम एस ऐसे आती है. तो यहाँ से अगर मैंने मैथ 2 का निकालना हो तो वो आ जाएगा m1 टाइम एम ए ओवर A2. आपको m1 गिवन है, A1 A2 गिवन है, यहाँ से आप मैथ निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा. Yeah, let me write math. 4.7 10 to power negative 7 kg. Okay, so now you have to find out the magnitude of charge q. So how can you find the magnitude? So you can use the same thing. Force on 1 to 2 is equal to m1 a1, जो हमने यहाँ पे यूज की थी. तो अगर मैंने फोर्स निकाल ली हो, तो मतलब जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसके बराबर होगी, बाय कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R के. नाउ हमें पता है कि Q1 Q2 सेम है, इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जो भी चार्ज Q1 होगा वही Q2 होगा. तो मैं Q से डिफाइन कर रहा हूँ, उसको मैं Q स्क्वायर कर देता हूँ, और R डिस्टेंस होगा M1 A1. आपको M1 पता है, आपको A1 पता है. ठीक, और आपको जो डिस्टेंस है बिटवीन टू पार्टिकल्स वो भी गिवन है. कहाँ पे गिवन है, सिक्स प्रॉब्लम, या 3.2 10 टू पावर नेगेटिव 3 मीटर पार्ट. तो जो डिस्टेंस है आपके पास वो भी गिवन है, चीज भी आपको गिवन है. तो आपको एक्चुअली में आर भी गिवन है और आपको हर चीज गिवन है. यहाँ से तो अगर आपने चार्ज निकालना होगा तो चार्ज अगर जो मैग्नीट्यूड आएगी उसकी वैल्यू आएगी 7.1 10 टू पावर नेगेटिव 11 कूलम. ओके, तो
this is the problem. नाउ मूव टू एंड जो 13 है वो आपने खुद सॉल्व करना, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जब हमने एग्जांपल सॉल्व की थी। तो 13 डू योर सेल्फ। ओके, लेट्स मूव टू अनदर example, which is the 15th example. It states that the charges and coordinates of two charge particles held fixed in an xy plane. Q1 charge is given, whose coordinates is given, and Q2 charge is given and whose coordinates x and y are given. Find the magnitude and direction of the electrostatic force on charge on particle 2 due to 1, the first thing, and what are its x and y coordinates, that should a third particle of charge Q3 be placed such that the net electrostatic force on 2 due to 1 and 3 are 0. So as we did a very complex, lengthy problem, so let's divide into steps. So just find out what is the magnitude and direction of electrostatic force in the particle 2 on particle 2 due to particle 1. Okay, so you have 15. So you have given Q1 charge, which is positive 3 microcoulomb, which is placed at the x coordinate is 3.5 centimeter, y coordinate is 0.5 centimeter. Okay, and the second charge, whose magnitude is whose charge is negative 4 microcoulomb, and of course coordinates, which is x2 is equal to negative 2.0 centimeter, and the y component is 1.5 centimeter. So before proceed further, let's locate these particles in the xy plane. Here is the y plane, here is the x-axis and the y-axis. So where would be the charge q1 lies? As charge q1, it has a positive x-axis, so it means here is the charge q1. Here is something you can call this 3.5 centimeter. Okay, so y is a positive 0.50. So because you have something at this point, so this is where q1 is placed. So where is q2 is placed? Q2 is placed x equal to negative 2. So this is x is equal to negative 2 and y is equal to 1.5. So here is a y 1.5. So this is a charge q2. Okay. So in A part, you have to find out the force on charge 2 due to 1 and its magnitude and also its direction. Okay, so if see this is a negative charge particle and this is a positive charge particle. So if I have to find out the positive charge, if I have to find a positive charge force on this charge due to this charge, so what would be this a free body diagram? I just draw a free body diagram at this point. So there's a force, it's a positive and negative. So there's a positive force towards each other, and this is called F on 2 due to 1. Okay, so how can we find out its direct magnitude, which is given as 1 over 4 pi epsilon naught q1. What is the value of q1? Q1 is positive 3 microcoulomb. So 3 10 to the power negative 6. And what is q2, which is negative 4 10 to the power negative 6. And what is the distance between these two particles? You have to figure out. Okay, so actually this is the distance between the particles. So and you can call this r. So you don't know the value of r square. So how can we find r? R can be found out by distance relation formula. So you know the value coordinate of q1 in x and y, and you know the coordinate of a charge 2 x and y. So it stated x2 minus x1 squares plus y2 minus y1 square root. Okay, just plug in the value and you can come up with the result 0.56 meter. Okay, just plug in the value in this formula and you come up with the force, which is turned out to 35 newton, and it's the magnitude. How can we find out the electric that
Sorry, how can you find out the direction? So in direction you can find out the theta, which turns out to be the tangent inverse y over x, and here is the y2 minus y1, x2 minus x1. So just plug in the values and you can come up with negative 10 degrees. It states that, yeah, it states that if you have sorry, this is the x-axis, so this is the clockwise 10 degrees. So 10 degrees is the clockwise angle with that the force, the resultant force F21 making with the x-axis. Okay. Now comes to part B. Comes to part C, because part A and B, the part A is in which you have to find out the magnitude of the force, and is the part A, and this is the part B in which you have to find out the direction of the force as well. तो अगर आपने थर्ड में वो ये कह रहा है कि अब आप एक अलग एक नया पार्टिकल लेके आए हैं, मतलब ये आपके पास Q1 था, ये आपके पास Q2 था, अब एक थर्ड पार्टिकल लेके आए हैं जिसको मैं Q3 कह रहा हूँ। आपने उसको इस तरह प्लेस करना है और इनके दरम्यान इस तरह प्लेस करना है कि जो आपके पास वो है हमारे पास, या कि हमारा जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अचीव होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या कहती है? द समेशन ऑफ ऑल नेट फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो वो कभी होगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास जो Q1, Q3 और Q2 है ना वो लीनियर हो। तो अगर आपके पास Q1, Q2 एंड Q3 लीनियर होंगे कोलिनियर होंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कोलिनियर का मतलब कि एक सेम ही लाइन में होंगे, सेम प्लेन के अंदर होंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने Q3 को कहाँ पे प्लेस करना है? इनसाइड, इनके दरमियान प्लेस करना है, Q1 के आफ्टर प्लेस करना है, या फिर Q2 से पहले प्लेस करना है? तो ये हर चीज़ें, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारा जो Q3 चार्ज है वो कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव है। एंड इट स्टेटेड दैट द Q3 इज पॉजिटिव चार्ज एंड विच इज पॉजिटिव 4Q। तो Q3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4 माइक्रो कूलम। तो अब इसका मतलब है कि अगर आपको अब ये ऑब्वियस चीज़ है, ये आपने एग्जाम्पल से देख लिया होगा, इसको हम दरमियान में भी प्लेस नहीं कर सकते और बिफोर Q1 भी प्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज Q1 का और Q3 का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सारी आपको उसमें सारी कहानियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके पास Q3 है जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास है 4 माइक्रोकूलम, और उसको मैंने प्लेस कर दिया है, तो कोलिनियर होना चाहिए, तो जो चार्ज 3 है वो इसके दरमियान में ही आना चाहिए, इसके वजह ताकि वो कोलिनियर प्लेन बन रहा हो हमारे यहाँ पे इस तरह करके। ओके, तो फिर कैसे करेंगे? अब वो कह रहा है कि आपने इस तरह फाइंड आउट करना है इक्विलिब्रियम। तो जो किसके ऊपर फाइंड करना है इक्विलिब्रियम? आपने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है ऑन चार्ज 2, पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 एंड 2। इसका मतलब ये है कि आपके पास फोर्स लग रही होगी ऑन 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स जो कि लग रही है 2 लगा कौन रहा है 3 पार्टिकल। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द सेकंड पार्टिकल। ओके, तो जस्ट इक्वेट देयर मतलब वैल्यूज, इसको मैं वैल्यू निकाली हुई है कि जो कि फोर्स 2 लगा रहा है 1 के ऊपर, तो यहाँ से निकाली है वो 35 हमारे पास आती है। और उसको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सिर्फ 35 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? Q2 की वैल्यू गिवन है, Q3 की वैल्यू गिवन है, Q2 की वैल्यू गिवन है, Q3 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब R कौन सा डिस्टेंस है? क्या R जो हमारे पास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये हमें नहीं पता कि कितना है। ठीक है, हमें ये पता है कि हमने पॉइंट को कहाँ, उस चार्ज को कहाँ पे लाके प्लेस करना है। ओके, ठीक है, हमें ये चीज़ें पता है। अब आप इनकी जो वैल्यूज हैं वो इधर प्लग इन करें, और इसको सबको इधर डिवाइड, इधर से आप R की वैल्यू निकालोगे जो कि आएगा 6.4 सेंटीमीटर। मतलब ये वो डिस्टेंस है जब आप अपने जो पार्टिकल जो है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको इस डिस्टेंस से प्लेस करोगे जो कि 6.45 सेंटीमीटर है, तब आपको जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो अचीव हो जाएगी। ओके, अब आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ डायग्राम के थ्रू देखें तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पे x2 होगा, ये x2 था यहाँ पे, तो जो x3 होना चाहिए उसको थोड़ा मजीद नेगेटिव में होना चाहिए।
ओके, अब इसका मतलब है अगर इसको मैं तो दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करूँ, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैंने अपना एक्स थ्री कोऑर्डिनेट निकालना होगा, वो कैसा आएगा, एक्स टू माइनस आर कोसाइन ऑफ थीटा। अब ये आर कैसे निकाला, बिकॉज अगर ये आर मेरे पास ये है, तो ये कंपोनेंट क्या बनेगा, ये एक्स के अलॉन्ग बनेगा, तो ये ए मतलब वो चीज़ बन रही होगी पॉजिटिव में, और ये मतलब उसमें आ रही होगी, या इसी तरह कोसाइन, और इसी तरह कोसाइन में आ रही होगी हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, या एक मिनट हम इसको ये चीज़ करना चाहें, और अगर मैं वाई थ्री निकालना हो तो वाई थ्री मेरे पास आएगा वाई टू माइनस आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा ने पहले निकाल लिया हुआ जो कि हमारे पास -10 डिग्रीज था, और आपको आर गिवन है, आपको एक्स टू की वैल्यू गिवन है, वाई टू की वैल्यू गिवन है। जब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपको एक्स थ्री आएगा, वो होगा -8.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वाई आएगा वो 27 सेंटीमीटर आएगा। अब आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लगाया, इसको पॉजिटिव क्यों हमें यूज़ किए। देखें, जब आप इसकी वैल्यू, अगर आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो फिर जो इसमें कोसाइन कोसाइन -10 होगा, जो आर की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में, एक्स टू हमारे पास किस में है, एक्स टू हमारे पास आ गया नेगेटिव के अंदर, तो ये सॉरी एक्स टू नेगेटिव के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नेगेटिव में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो आपका जो एक्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ताकि कम नहीं हो, उसको ज़्यादा होना चाहिए, वो जो ये वाली वैल्यू है ये इससे ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसलिए आपको इसे प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं, जो आपका साइन -10 है वो नेगेटिव साइन बाय नेगेटिव कर देगा इसको, अगर हमने पॉजिटिव यूज़ किया होगा तो फिर वो सारा जो आपका वाई की वैल्यू वो कम आ जाएगी। अगर वाई की वैल्यू कम नहीं आ जाएगी, बिकॉज वाई की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इस वाई टू से, वाई थ्री की वैल्यू वाई टू से ज़्यादा होनी चाहिए, इस वजह से आपने इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है। हाँ, ये चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको देख यहाँ से जो फिगर है वहाँ से देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से आपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लिए हैं। तो यही आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना था। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 26 पे। तो 26 है, इसका टू चार्ज क्वांटाइजेशन, जो कि आपने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ पॉइंट, सॉरी 26 की बात करें, सॉरी 26 stated what is the magnitude of the electrostatic force between a charge सिंगली चार्ज सोडियम आयन, जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ई है, एंड एडजेसेंट सिंगली चार्ज क्लोरीन आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ई है, इन अ सॉल्ट क्रिस्टल इफ द सेपरेशन बिटवीन गिवन। तो एक्चुअली में ये भी बड़ा आसान है, तो ये भी आप ही करेंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि आपको इसमें जो Q1 है वो गिवन है, जो पॉजिटिव ई है, जो Q2 है वो भी गिवन है, वो नेगेटिव ई है, और जो उनके जो सेपरेशन है 2.82 10⁻⁻10 मीटर वो भी गिवन है। आपने जस्ट फोर्स फाइंड आउट करनी है, वो जो आप कूलम फोर्स से इजीली निकाल लोगे। तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है इसको। सिमिलरली जो प्रॉब्लम नंबर मेरे पास 27 है, या प्रॉब्लम नंबर 27, वो भी काफ़ी आसान है कि आपको दो फोर्सेस का जो दो चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है, उनका जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो गिवन है, और दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो आपने उसका जो चार्ज है वो निकालना है पहले पार्ट में, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आइन। ओके, तो इसको थोड़ा पार्ट बी को थोड़ा सॉल्व करते हैं। इट्स स्टेट आपको जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है 3.7 10⁻⁹न्यूटन, एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस आयंस जो हैं वो गिवन है। तो पहले आपने निकालना है चार्ज, पहले ए पार्ट में निकालना है आपने चार्ज। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, आप निकालोगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and the charges are identical, so we just call q square over r square। हम बात करें मैग्नीट्यूड्स की, तो यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे, अगर हमें चार्जेस निकालने होंगे तो सिंपल आप वैल्यू पुट करोगे, आपको एफ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, आपको आर की वैल्यू गिवन है, आप सिंपल यहाँ से ए पुट करके जो चार्जेस हैं वो आएगा 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अब वो कह रहा है कितने पार्ट बी में कह रहा है कितने नंबर ऑफ आइंस मिसिंग है इसके अंदर से।
तो आपका जो चार्ज क्वांटाइजेशन उसको जो हम रिलेशन क्लास में डिस्कवर किया, क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है हमारे पास। तो अगर आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है, आपको ई की वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं बताया क्यू ओवर, सॉरी एन निकाला क्यू ओवर ई, जस्ट वैल्यू पुट करके आपको टू आयन मिसिंग है इस चार्ज में से। ठीक, तो ये हमारे पास उसकी स्टेटमेंट थी। इसके बाद हम देखते हैं 28 भी बड़ा आसान है, वो भी आपने कहा आपको करंट गिवन होगा। ठीक है, उसका टाइम गिवन है। अब मैं चार्ज निकालना जो कि हमने पहले भी प्रॉब्लम 2 में भी कर लिया था। ठीक है, तो ये आपने जो प्रॉब्लम नंबर 28 है, ये डू योर सेल्फ, ये खुद करना आपने। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जो प्रॉब्लम नंबर 37 है, इट इज रिलेटेड टू चार्ज कंजर्वेशन, ये चार्ज किस तरह कंजर्व रह रहा होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम नंबर 37 है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कहती है कि आपके भाई तीन केमिकल रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि उनमें जो अननोन जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो मैं उसमें से सिर्फ एक एक पार्ट करूँगा, बाकी सारे आपने करनी होंगी। प्रॉब्लम नंबर 37, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। ओके, जो पहला पार्ट है उसमें ये क्या हाइड्रोजन एटम है प्लस बेरिलियम, जब वो आपस कंबाइन होता है आपको एक अननोन एलिमेंट मिलता है और प्लस एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। इसमें हमें ये चीज़ गिवन है, एटॉमिक मास नंबर इन दोनों के गिवन है, और हमने बाकी चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि जो ये एक्स एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल में से कौन सा एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, हमें वो चीज़ पता है कि हमारे पास जो टोटल चार्ज है बिफोर रिएक्शन उसको इक्वल होना चाहिए आफ्टर द रिएक्शन, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ओके, तो वो किस तरीके से करेंगे, पहले हम ऐसा करते हैं कि इनके ना टोटल टोटल चार्ज निकाल दो जो कि बिफोर द रिएक्शन है। तो बिफोर द रिएक्शन में अगर आपको पता है जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर, ये मैथ नंबर एटॉमिक नंबर 1 होता है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने बात करनी हो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0, बिकॉज एक हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपके पास यहाँ पे इस केस में 0 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर ये 4 है इसका एटॉमिक नंबर और 9 इसका मास नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ से जो न्यूट्रॉन्स मिलेंगे वो कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स यहाँ पे 5 हैं, बिकॉज आपका जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका एटॉमिक नंबर है जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी प्लस जो न्यूट्रॉन नंबर होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये चीज़ 9 है और आपको पता है जो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और अगर आपने ऐसे एन निकालना हो तो क्या आपको गिवन होगा 5। तो इस ये चीज़ आपने ये डायग्रेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैंने बात करनी हो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी अभी मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे पास, इसमें तो न्यूट्रॉन 0 है तो इसमें 5, तो टोटल न्यूट्रॉन 5 हो गए। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कहना चाहिए मुझे, कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। देखो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर से डिफाइन होते हैं, तो इसका प्रोटॉन नंबर 1 है और इसका 4 है, तो इधर ये 5 आ गए। अच्छा जो ये तो हमारे पास हो गए बिफोर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की बात। तो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे जैसे हमने बात की है कि एक न्यूट्रॉन है, तो एक न्यूट्रॉन यहाँ पे है, तो इसका मतलब जो भी इसके न्यूट्रॉन्स होंगे वो इधर 5 होने चाहिए, तो 5 न्यूट्रॉन्स हो गए एक्स एलिमेंट, तो एक्स एलिमेंट के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने आ गए, वो 5 हैं। ओके, तो एटॉमिक नंबर जो टोटल प्रोटॉन होना वो 5 होने चाहिए, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन नंबर है जो इसके अंदर जो सॉरी जो जी है वो भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जो इसके साथ जो सॉरी जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 4 होंगे। 4 किस पास होगा, तो एक न्यूट्रॉन तो ये आ गया, तो टोटल अगर 5 होंगे इसका मतलब है कि यहाँ पे कितने होंगे 4, तो 4 न्यूट्रॉन एक्स के पास होंगे, और जो प्रोटॉन नंबर है वो 5 के 5 होंगे। तो ठीक है, अगर मैंने इसका एटॉमिक मास नंबर निकालना हो जो कि क्या आएगा मेरे पास, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर जो 9 के बराबर आएगा। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास प्रोटॉन नंबर 5 हो
एटॉमिक नंबर 5 हो और मास नंबर 9 हो, तो ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास होता है बोरोन। तो वहाँ पर जो एक्स एलिमेंट है वो बोरोन होगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा, आपने जो चार्ज कंजर्वेशन है उससे आप डिफरेंट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने बी पार्ट भी देखना है, उसमें कार्बन एटम है और एक हाइड्रोजन है, आपको एक्स दिया है, कोई भी एक मतलब अननोन एलिमेंट दे रहा है और कोई भी चीज़ बाकी रिलीज नहीं हो रही, ना न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें भी आप टोटल एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन्स है वो फाइंड आउट करो और जितने न्यूट्रॉन है वो फाइंड आउट करो और उसको इक्वेट करो, वो एलिमेंट ढूंढो जाके, आपको इजीली मिल जाएगा, या बाकी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब मैं चलता हूँ प्रॉब्लम नंबर जो 41 है, वो भी काफ़ी आसान है, तो वो भी आप खुद देख लीजिएगा। बाकी हम चलते हैं जो या प्रॉब्लम नंबर 41, तो ये आपने करना है। लास्ट जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर का 42, उस पर चलते हैं। 42 है, वो ये बता रहा है कि आपके पास टू चार्जेस हैं जो कि एक थ्रेड से कंबाइन है, और वो थ्रेड की लेंथ जो है वो एल है, और वो जो आपस में डिस्प्लेस है सम स्मॉल एंगल थीटा। आपने और जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एक्स, आपने बताना है कि जो एक्स की वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी। ओके, तो वो जो है एक्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, मतलब जो फोर्स इसके ऊपर ये चार्ज लगा रहा है वही फोर्स ये चार्ज इसके ऊपर लगा रहा होगा, तो इसका मतलब जो समेशन ऑफ ऑल फोर्स है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको हमें देखना हो तो ये आपका ये स्टेट है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये आपके पास एक्स डिस्टेंस है, और यहाँ से ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, इसकी लेंथ भी एल है और इसकी लेंथ भी एल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसी भी एक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। तो अगर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, इस पर मैं इस चार्ज को बना रहा हूँ, तो एक तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है इसके वेट की, जो कि है इसके एम जी। ठीक है, क्योंकि इसके डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो एक फोर्स इसकी वेट की होगी वो कि जो एम जी के बराबर होगी। अब आप देखें कि ये चार्ज इसके ऊपर इधर को फोर्स लगा है टुवर्ड एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे एक फोर्स लग रही होगी, ठीक है, इसको मैं फोर्स ऑफ ई कह रहा हूँ, तो ये चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये चार्ज इसके ऊपर इधर इंसर्ट है, बिकॉज ये आइडेंटिकल चार्जेस हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव हो तो भी नेगेटिव होगा। हम अस्यूम ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फोर्स जो होगी टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस में होगी। ठीक है, और यहाँ से एक मतलब जो ये वाली फोर्स होगी ये होगी टेंशन की फोर्स। ठीक, और अगर आपके पास यहाँ से ये वाली चीज़ थीटा ये बना रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये वाला एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा। अगर ये वाला थीटा है तो ऑब्वियसली बात है ये थीटा भी हम फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से मैंने एक्स एक्सिस डिफाइन करने हो, तो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरे पास थीटा है। और थीटा डिफाइन करना हो, अगर मैं टी को डिकम्पोज करूँ इनटू इट्स रेजोल्यूशन वेक्टर्स, तो एक वेक्टर ये आएगा और एक वेक्टर ये आएगा। ठीक, और ये वाला टी वाई के बराबर होगा और ये वाला टी एक्स के बराबर होगा। जो टी एक्स की वैल्यू होगी वो टी साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगी, और जो ये टी वाई है ये मेरे पास आएगी टी को साइन ऑफ थीटा का। ये सारी चीज़ें आपको पता ही, हमने वेक्टर की काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसका मतलब क्या है, अगर इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है तो जो अपना नेट फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है अगर मेरे पास जो नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वो भी जीरो होनी चाहिए, और जो अलोंग वाई है वो भी जीरो होनी चाहिए। ओके, तो अगर मैंने बात करनी हो एक्स एक्सिस की, एक्स कंपोनेंट की बात करनी हो, तो एक्स में एक कंपोनेंट पर फोर्स लग रही है एफ ई, वो जो नेगेटिव में है तो उसमें नेगेटिव एफ ई कह रहा हूँ, और एक फोर्स लग रही है टी एक्सटेंशन का एक्स कंपोनेंट जो पॉजिटिव में है, दिस वन, और वो मेरे पास आया टी साइन ऑफ थीटा। ठीक, और जो कि किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। और अगर मैंने बात करनी हो वाई कंपोनेंट की, तो वाई कंपोनेंट में अगर मैं देखूं, वाई कंपोनेंट में मेरे पास आता है या एक तो फोर्स जो है वेट की डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड में वो मतलब आपको पता है कि नेगेटिव वाई में है, तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव में आएगी। और एक फोर्स टेंशन का जो ये वाला कंपोनेंट ऊपर को बना जो टी कोसाइन थीटा है, इसका मतलब जो मेरे पास फोर्स अलोंग वाई आएगी वो टी कोसाइन ऑफ थीटा नेगेटिव ऑफ एम जी इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब आपको एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई।
ठीक है। तो यहाँ से आप अपने टी की वैल्यू निकाल लें, जो टी की वैल्यू आएगी वो एम जी को साइन ऑफ थीटा होगी। इसको आप 1 के अंदर पुट कर दें। ठीक, तो पूरा पुट करेंगे वो सारा, मतलब आपको मिलेगा वो एम जी टेंजेंट ऑफ थीटा इज नेगेटिव एफ ई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब हमें एक और चीज़ पता है, जो टेंजेंट थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप दोबारा यहाँ पे इस डायग्राम पे आ जाएं। अब आपके पास अगर ये थीटा है और हमें टेंजेंट निकालना है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूँ दिस थिंग। अब ये चीज़ आपको, तो ये चीज़ बन रही है, अगर ये पूरा एक्स है तो ये कितना होगा, x/2 होगा। ठीक, ये पूरा आपके पास लेंथ गिवन है। तो अगर हमें टेंजेंट थीटा निकालना हो, वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर दिस ओवर बेस ओवर दिस थिंग। आपको ये नहीं पता कि कितनी है, तो अगर आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी हो, ठीक, अगर आपने यहाँ से बेस निकालनी हो, बेस किसके बराबर होगी, आप सिंपली वो जो अपना है पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ कर लेंगे। तो अगर मैंने बेस निकालनी हो, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू मैं इधर इंसर्ट करूँगा तो वो मेरे पास आएगी टेंजेंट थीटा इज इक्वल, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, x/2। बिकॉज मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक पता है पूरा x है, तो ये x/2 होगा। और ये चीज़ किसके बराबर होगी, एल स्क्र माइनस दिस थिंग स्क्र। ठीक, तो वो डिवाइडेड बाय वो आ जाएगी एल स्क्र माइनस x/2 स्क्र ओवर स्क्र रूट। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई है। हमने उसने ये कहा हुआ है कि अगर आपके पास जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है x से, तो इसका मतलब जो आपके पास x स्क्र है वो बहुत एक स्मॉलर क्वांटिटी आएगी, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो लिहाजा जो इस चीज़ को है हम इग्नोर कर देंगे, तो आपके पास जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x/2 एल। ठीक, तो हमने कहा कि जो क्वेश्चन में उसने गिवन दिया हुआ है कि अगर स्मॉलर थीटा गिवन हो तो आप टेंजेंट थीटा को साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इट अप्रॉक्सीमेट कैन बी इक्वल टू साइन थीटा, जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस एक्सप्रेशन which is called equation number a। तो इक्वेशन नंबर a becomes, जब उसकी वैल्यू को इंसर्ट करोगे और सारा मतलब वो अलजेब्रा परफॉर्म करोगे, सब आपने कर लीजिएगा, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है वो आ जाएगा। इसलिए मैं पुट कर ही देता हूँ एम जी एक्स ओवर एल, ठीक, इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने इधर इसको राइट साइड पे ले गया, तो पॉजिटिव एफ भी हो जाएगा। और जब मैंने वैल्यू पूरी इंसर्ट की इसके अंदर, ये चीज़ बन गई। अब जो एफ ई है हमारे पास, उसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, एक्स ओवर टू एल विच इज कम टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्केयर ओवर, क्योंकि एक्स के बराबर होता है, बिकॉज हम इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो एक्स स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जब आप एक्स को वैल्यूएट करोगे, जो कि आपके पास आ जाएगा क्यू स्केयर एल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी की पावर 1/3। और यही आपने ड्राइव करना था, शो करना था। ठीक है, तो पार्ट बी में ये कहता है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें गिवन हो, आपको लेंथ गिवन हो, मैथ गिवन हो, एक्स गिवन हो, आपने क्यू निकालना है। तो कोई नहीं, अगर आपको यहाँ पे एक्स गिवन हो, लेंथ गिवन हो, मैथ गिवन हो, तो अब यहाँ से इजीली जब आप क्यू निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा, +/-2.4 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज़ थी। तो ये हमारे इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम्स थे। इनमें से जो चीज़ें थी जो आपने लाजमी सॉल्व करनी है, वो एग्जाम्पल नंबर 41 है। वैसे तो इसका सोल्यूशन मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सोल्यूशन मैनुअल है इसका वहाँ से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो मैंने मार्क करवाए वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द होल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ आवर चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।